Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you will be fine. Dear students, today is our lecture number 7, and as you know, in our previous lecture we have discussed the translation of unit number 2, patriotism. Dear students, in our previous lecture we have discussed the qualities of a patriot. We learned that who is called patriot and what are the qualities of patriot and what are the duties of a patriot toward his country. In first paragraph, we have discussed that the patriot is a one who loves his country and who is always ready to sacrifice his life for his country. And the patriotism means love for motherland or devotion to one's country. In the second paragraph, we discussed that the patriotism gives the people the strength and courage to the people to safeguard the interests of his nation and his country. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. And in the third paragraph, the writer says that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture and tradition of the Muslim of subcontinent, and he gave the Muslim of subcontinent a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. And in the fourth paragraph, we have discussed that the spirit of patriotism make us stay alert in the wake of foreign invasion. In the history of Pakistan, there are many instances when the brave soldiers of Pakistan army laid down their lives for the protection of country. And all of them were awarded by Nishan-e-Haider, the highest military award of Pakistan. And in fifth paragraph, he told us that patriotism is not just a feeling, it is a life spirit which continuously inspire and guide a nation. And in the word of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes with the soul so dead, who never to himself hath said, दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड. डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि सबसे पहले कि एक जो पैट्रियोट होता है, वो पैट्रियोट कहते किसको है? पैट्रियोट वो होता है जिसको हम कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं वतन से मोहब्बत करने वाला या मुहब्बुल वतन. ऐसा शख्स जो अपने मुल्क के लिए जो है वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो, अपने मुल्क के साथ शिद्दत के साथ मोहब्बत करता हो और अपने मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और वकार जो है उसके लिए सबसे जो है आला तरीन इक़दार हैं जिन पर वो कभी कोई समझौता नहीं करता. वो मुल्क के साथ कभी भी गद्दारी करने के बारे में नहीं सोचता और वो मुल्क के जो दुश्मन होते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार होता है. उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो स्पिरिट है, ये जज्बा जो है पैट्रियोटिज्म का, ये हमें तहरीक देता है, ये हमें हमेशा जो है चौकस रखता है किसी भी बैरूनी हमला की सूरत में. ठीक है. और पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं कि जब हमारे पाकिस्तान आर्मी के बहुत से जो बहादुर जवान थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस मुल्क की हिफाजत में, और उन तमाम को जो है जो इनमें से जो जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, यानी कि जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है अपने मुल्क भी जो है अपनी जानें कुर्बान की, उनको निशान-ए-हादर से नवाजा गया. और आखिर में जो है राइटर हमें बताता है कि ये हुब्बुल वतनी का जज्बा ये सिर्फ एक एहसास ही नहीं, ये एक जिंदा जज्बा है जो मुसलसल किसी कौम को तहरीक देता है, उसको उभारता है, उसकी रहनुमाई करता है. और S.W. स्कॉट जो है उसके अल्फाज में एक शख्स जो कि हुब्बुल वतनी के जज्बात से महरूम होता है वो उस शख्स की मानद होता है जो कि मुर्दा रूह की तरह सांस लेता है, जो कभी खुद को ये नहीं कहता कि ये मेरा अपना, ये मेरा अबाई वतन है. टुडे वी शैल लर्न ग्लॉसरी एंड एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2. First of all, we will learn the glossary of unit number 2. The first word is devotion. Devotion का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि devotion कहते हैं लगन को, वफादारी को. तो क्योंकि इसका जो सिनोनिम है फिर वो लॉयल्टी हम कहेंगे. इसके बाद है commendable. Commendable कहते हैं काबिल तारीफ, ऐसी खूबी जिसकी तारीफ की जाए, admirable. आगे है supreme. Supreme कहते हैं आला तरीन, जिसको हम कहते हैं सबसे ऊपर, आला तरीन, टॉप. आगे है value. Value कहते हैं कदर, तो इसकी है सिनोनिम वर्थ. आगे है नेटिव. नेटिव कहते हैं आबाई, यानी कि किसी जो है शख्स का जो है आबाई जो इलाका होता है उसको हम उसके नेटिव लैंड कहते हैं. फ्रॉम वंस मदरलैंड, किसी का जो है आबाई, किसी का आबाई जो है इलाका. आगे है क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियोटिज्म. आप किस तरह जो है हुब्बुल वतनी को जो है डिफाइन करेंगे. तो ये सबसे पहले हमने जो है चैप्टर की पहली लाइन में हमने पढ़ा था पैट्रियोटिज्म मीन्स
लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वन कंट्री, यानी कि किसी शख्स का अपने मुल्क के साथ मोहब्बत और जो लगन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हुब्बुल वतनी कहते हैं, यानी कि वतन से मोहब्बत। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियोट, यानी कि किसी जो वतन से मोहब्बत करने वाला शख्स होता है, हुब्बुल वतन जिसे हम कहते हैं, उसकी क्या खूबियां होती हैं। तो ये भी हमने पढ़ा कि ए पैट्रियोट लव हिज कंट्री, ही नेवर कंप्रोमाइज ऑन सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, ही वर्क हार्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज कंट्री। आगे है थर्ड पैराग्राफ, थर्ड क्वेश्चन है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड योर कंट्री, बतौर पाकिस्तानी के शहरी होने के आपकी कौन सी जो है जिम्मेदारियां हैं, कौन से फ़राइज़ हैं आपके मुल्क के बारे के हवाले से, ठीक है। तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ आवर ड्यूटी टू वर्क हार्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री, वी शुड नेवर compromise ऑन sovereignty, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ आवर कंट्री, वी शुड वर्क ऑनेस्टली and we should always ready to sacrifice our life for our country। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, क्या चीज़ जो है वो हमें चौकस रखती है बैरूनी हमला की सूरत में। तो इसका भी हमने आंसर जो है यहाँ पे पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 4 में, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, यानी कि ये हुब्बुल वतनी का जज्बा ही है जो हमें चौकस रखता है बैरूनी हमला की सूरत में। आगे है फिफ्थ जो है क्वेश्चन, हाउ विल यू इलेबोरेट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोट, वी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म विच गैल्वनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। वो कहता है किस तरह आप इसकी वजाहत करेंगे कायदे आज़म की कॉल की कि हम सबको जो है, हम सबको जो है हुब्बुल वतनी का जो है एहसास पैदा करना चाहिए, जो हम सबको एक मुत्हिद और ताकतवर कौम की शक्ल में तहरीक देता है। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट वी शुड क्रिएट अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म which gives us passion and which make us strong and united, and we should always ready to sacrifice our lives for our country। आगे है vocabulary, फर्स्ट जो है ये जो है ए एक्टिविटी है, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कंफर्म योर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड है वो है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कहते हैं निगरानी, तो इसका हम गेस्ट मीनिंग जो है वो प्रोटेक्शन, जिस तरह हिफाजत कहते हैं इसको, ठीक है, इस तरह डिक्शनरी मीनिंग भी इसका प्रोटेक्शन ही होगा। आगे है इंस्टेंस, इंस्टेंस का मैंने आपको बताया था मिसाल, तो मिसाल जो है इसको हम एग्जाम्पल कहते हैं, तो इसका गेस्ट मीनिंग भी एग्जाम्पल है और डिक्शनरी मीनिंग भी एग्जाम्पल ही है। उसके बाद है फिडेलिटी, फिडेलिटी कहते हैं ईमानदारी, जिस तरह लॉयल्टी होती है, तो लॉयल्टी जो है इसका गेस्ट मीनिंग भी है और डिक्शनरी मीनिंग भी है। आगे है फोर्थ शील्ड, शील्ड का आप जानते हैं हिफाजत, या इसको हम कहते हैं ढाल, तो इसका है शेल्टर या आर्मर, तो इसका डिक्शनरी मीनिंग जो है वो भी शेल्टर या आर्मर ही होगा। आगे है रिवार्ड, रिवार्ड आप जानते हैं, रिवार्ड कहते हैं इनाम, ठीक है, प्राइज इसे हम कहते हैं, तो प्राइज जो है इसका गेस्ट मीनिंग भी है और इसका डिक्शनरी मीनिंग भी है। आगे है एक्टिविटी बी, मेक एज मैनी वर्ड एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स, वो कहते हैं ये जो रूट वर्ड है इनके साथ आप बहुत से जो है वर्ड बनाएं, जिस तरह वर्क है तो वर्क के साथ हम ला सकते हैं वर्कर, वर्क प्लेस उसने दिया हुआ है, ठीक है, वर्कआउट, वर्किंग, वर्कड, इसके अलावा वर्केबल, ठीक है। तो उसके बाद है प्ले, प्ले के हम बना सकते हैं प्ले ग्राउंड, प्लेइंग, प्लेयर, प्लेड, इस तरह प्लेएबल या प्ले फ्रेंड। आगे है एक्टिविटी सी, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेस, यानी कि इन जो वर्ड है इनको आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस होता है कुर्बान करना, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी कैन सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर आवर कंट्री, या अ पैट्रियट इज ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। आगे है कमेंडेबल, कमेंडेबल का मैंने बताया है कि काबिल तारीफ, तारीफ के काबिल, काबिल सताइश, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑनेस्टी इज द कमेंडेबल क्वालिटी, यानी कि ईमानदारी जो है वो एक काबिल तारीफ जो है वो वस्फ है। आगे प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली, वी शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। आगे है इन्वेजन, इन्वेजन कहते हैं हमला, तो वी शुड स्टे अलर्ट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, या द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। आगे है मदरलैंड, पाकिस्तान इज आवर मदरलैंड। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कहते हैं जिम्मेदार, ठीक है, आवर कंट्री नीड आ रिस्पॉन्सिबल मीडिया। आगे है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म कहते हैं कौमियत परस्ती, नेशनलिज्म काजेज प्रोग्रेस। आगे नेक्स्ट है ग्रामर, मॉडल वर्ब्स,
मैटर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी जो है एक्शन के मोड और मैनर को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं मॉडल वर्ब्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स विच हेल्प टू एक्सप्रेस मोड एंड मैनर ऑफ द एक्शन विच इज डन। सबसे पहले है मॉडल वर्ब्स आर एंड देयर फंक्शन। मॉडल वर्ब और इनके जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले मॉडल वर्ब्स ने दिए हुए हैं कैन, कुड, मे, माइट और वुड। इनका फंक्शन क्या है, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, यानी कि ये किसी इम्कान को ज़ाहिर करते हैं। यानी कैन, कुड, मे, माइट और वुड जो है ये क्या करते हैं, ये किसी इम्कान को ज़ाहिर करते हैं, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी। आगे है कैन, विल, कुड, वुड। इनका फंक्शन है टू इंडिकेट एबिलिटी, ये किसी सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई कैन डू दिस, ठीक है, तो ये सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं। आगे है मस्ट, विल, शैल, टू इंडिकेट सर्टेनिटी, ये किसी यकीनी अमर को ज़ाहिर करते हैं। आगे है माइट, शुड, ऑट। ऑट होते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी, ये भी किसी इम्कान को ज़ाहिर करते हैं। आगे है कैन, कुड, मे। मे जो है ये हम प्रेयर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा परमिशन के लिए भी यहाँ पे इसने दिया है टू इंडिकेट परमिशन, यानी कि हम इजाज़त के लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इन वर्ब का, मॉडल वर्ब का। आगे है शुड, मस्ट, नीड, ऑट टू। इनका फंक्शन है टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, ये यानी कि किसी जो है फ़र्ज को ज़ाहिर करते हैं, किसी जिम्मेदारी को ज़ाहिर करते हैं। इस तरह यूज है, ये किसी पास्ट हैबिट को ज़ाहिर करता है, टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी है, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है मे है, ये फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है परमिशन का, तो यहाँ पे जो है ये परमिशन के तौर पर उसने यूज़ किया इसको। आगे है कैन यू स्विम, क्या तुम स्विम कर सकते, क्या तुम तैर सकते हो, तो इसका है एबिलिटी, इसकी सलाहियत को ज़ाहिर कर रहा है। आगे है यू शुड कीप योर प्रॉमिस, आपको अपना वादा जो है वो पूरा करना चाहिए, तो ये जो है किसी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन यानी कि जिम्मेदारी को ज़ाहिर करता है। आगे है वी आर टू हेल्प हिम, और कहते हैं लाजमन, ठीक है, हमें लाजमी उसकी मदद करनी चाहिए, तो ये जो है मॉरल ऑब्लिगेशन, इखलाकी जिम्मेदारी जो है इसको ज़ाहिर करता है। यहाँ पे उसने एक्टिविटी ए दी हुई है, यूज अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू। फर्स्ट है डिस्क्राइब यूर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, अपनी जो 3 सलाहियतें हैं या 3 हैसियत जो है वो आप बयान करें। तो इसमें हम लिख सकते हैं आई कैन राइट, आई कैन प्ले, आई वुड लाइक टू ईट। आगे है सेकंड, आस्क टीचर परमिशन फॉर गोइंग आउट, टीचर से आपने परमिशन लेनी है बाहर जाने के लिए, ठीक है, तो मे आई गो आउट, ठीक है, कैन आई गो आउट या कुड आई गो आउट। आगे है थर्ड, आस्क अ फ्रेंड टू लैंड यू अ बुक, किसी दोस्त से कहें कि वो आपको किताब जो है उधार दें, तो इसका हम लिखते हैं विल यू लैंड मी यूर बुक, कैन यू लैंड मी यूर बुक और कुड यू लैंड मी यूर बुक। आगे है एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, यानी कि आपने जल्दी उठने की जरूरत को जो है उसको बयान करना है। यू कैन गेट अप अर्ली टू ऑफर प्रेयर, और वी शुड लीव द बेड अर्ली। आगे है यू मस्ट गेट अप अर्ली टू गो टू स्कूल। आगे फिफ्थ है एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल, यानी आपने जो है फर्ज या जिम्मेदारी को जाहिर करना है ट्रैफिक रूल्स के हवाले से। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे जो मस्ट उसने इस्तेमाल किया है ये जो है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को जाहिर कर रहा है। उसके बाद है वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पे शुड जो है ये इसको जाहिर कर रहा है, इसकी ड्यूटी को। आगे है वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल, हमें लाजमन जो है ट्रैफिक रूल्स की जो है पाबंदी करनी चाहिए। आगे है सिक्स, शेयर सम पास्ट हैबिट, अपनी जो है माजी की चंद आदत जो है उनको बयान करें, इसको शेयर करें। आई यूज टू प्ले हॉकी, आई यूज टू गो टू बाजार, या आई यूज टू गो आउट फॉर अ पिकनिक, यानी हम लिख सकते हैं वी यूज टू टेक ब्रेकफास्ट अर्ली। आगे है बी, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव। आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस की जो बेसिकली सेंटेंस हैज़ 5 काइंड्स, ठीक है। द फर्स्ट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव, उसके बाद इम्पेरेटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले जो एक्सक्लेमेटरी होती है, एक्सक्लेमेटरी के बारे में आपको पता होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दोज विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ इमोशन, जॉय, ग्रीफ, सॉरो और वंडर। एंड असर्टिव सेंटेंसेस
इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट और न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट अ फैक्ट, यानी कि किसी हकायक के बारे में हम किसी को स्टेटमेंट देते हैं, कोई न्यूज़ बताते हैं, कोई जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को भी आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज इन विच वी आस्क सम क्वेश्चन, दे आर स्टार्टेड फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जिस तरह व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस आर दोज व्हिच कंसिस्ट ऑफ निगेशन, डिनायल और रिफ्यूजल। उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, उसके अलावा है कमांड, प्रोविजन, प्रपोजल और रिक्वेस्ट और एडवाइस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कोई नसीहत करें, किसी को कोई हुक्म दें, किसी को जो है कोई तजवीज़ दें, किसी को मना करें, तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसको उर्दू में हम हुक्मिया फिकरात कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि इनमें से आपने एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो आपने बताने हैं कि इसमें कौन से आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट है आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड। वो कहता है कि आर्ट दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें जो है मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। तो ये क्या है, ये वो बात को बयान कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं ये असर्टिव सेंटेंस है। आगे है सेकंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ पे जो है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, दो ये स्टार्ट तो हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, लेकिन ये क्या है कि इसके एंड पे अगर हम देखें पेंटिंग के आखिर में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इनके एंड पे जो है या जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, उसके बाद है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव नहीं, ये बल्कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आगे है टीच हिम टू लर्न। ये जो है हुक्मिया फिक्रा है, तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है फोर्थ, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ। तो इसका ये क्या है, इसके बाद उसने दिया हुआ है। और जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसके एंड में जो है क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पे जो है हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आगे है 5, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। उसने जो है कोई भी गलत जो है वो बयान नहीं दिया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिड नॉट जो है ये क्या जाहिर कर रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आगे है एक्टिविटी सी, पंचुएट द फॉलोइंग। इनको आपने पंचुएट करना है। तो पंचुएशन आप जानते ही हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो है कैप्टन का उसने सी जो है ये स्मॉल लेटर है, तो इसको हमने कैपिटल लिखना है। कैप्टन का जो सी है ये कैपिटल आएगा, इस तरह मोहम्मद का एम, सर्वर का एस, मेजर का सर्वर के बाद जो है हमने कॉमा इस्तेमाल करना है, और मेजर जो है इसका एम कैपिटल आएगा, टी तुफैल का टी कैपिटल आएगा, इस तरह मोहम्मद का एम, और उसके बाद जो है कॉमा, उसके बाद मेजर का एम, उसके बाद जो है अजीज़ का ए और भट्टी का बी, इसके बाद जो है कॉमा, उसके बाद पायलट का पी, ऑफिसर का ओ और राशिद का आर, मिनहास का एम, ये कैपिटल आएंगे। उसके बाद क्या आएगा, कॉमा। उसके बाद मेजर जो है, मेजर का एम जो है ये एम बड़ा आएगा, उसके साथ मोहम्मद का एम भी कैपिटल आएगा, अकरम का ए कैपिटल आएगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मेजर का एम जो है कैपिटल, शबीर का एस कैपिटल और शरीफ का एस कैपिटल, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सवार का एस कैपिटल, मोहम्मद का एम कैपिटल, उसके बाद हुसैन का एच कैपिटल, उसके बाद कॉमा, उसके बाद लास्ट नाइक, लास्ट का जो है एल बड़ा आएगा, इसी तरह नाइक जो है इसका भी एन जो है बड़ा आएगा, मोहम्मद का जो है एम ये भी कैपिटल होगा, महफूज का एम कैपिटल, उसके बाद कॉमा, सी कैप्टन का सी कैपिटल, और जो है शेर खान, शेर जो है इसका एस कैपिटल, एंड हवालदार, और हवालदार जो है इसका भी एच कैपिटल, लालक का जो है एल कैपिटल, और जान का भी जे कैपिटल आएगा। ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टिरडम व्हाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड। मदरलैंड के बाद हम कॉमा जो है फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑल जो है इसका ए कैपिटल होगा, ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर। निशान हैदर जो है, निशान जो है इसके साथ जो है हम निशान जो है इसका एन कैपिटल आएगा, और निशान के बाद जो है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हाइफन, उसके बाद जो है हैदर का एच कैपिटल आएगा, उसके बाद हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, कंट्री के बाद हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, तो आज हमने इसकी जो है एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल आसान जो है चैप्टर है ये, तो आपने जो है इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी ग्लॉसरी जो है ये आपने याद करनी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।